ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के फेस्टिवल लोगो एवं पोस्टर का हुआ अनावरण। लखनऊ सिटी माउंटेसरी स्कूल के तत्वाधान में आयोजित होने वाली विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फेस्टिवल लोगो एवं फेस्टिवल पोस्टर का अनावरण आज CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारी प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया एवं अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के लोगो एवं पोस्टर का अनावरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अवस्थी ने कहा कि यह बाल महोत्सव फिल्म महोत्सव लखनऊ के बच्चों और अभिभावकों के लिए सर्वोत्तम अवसर है, जहां पर विभिन्न देशों के शिक्षात्मक बाल फिल्मों का निःशुल्क आनंद उठा सकते हैं एवं विभिन्न देशों के सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकते हैं। CMS के फिल्म डिवीज़न द्वारा 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 15 से 21 अप्रैल 2024 तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में 91 देशों की 501 शैक्षिक बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगनन ने बाल फिल्मोत्सव के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी पत्रकारों की दी। प्रोफेसर किंगनन ने कहा कि यह फिल्म फेस्टिवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं अपितु शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जो भावी पीढ़ी में जीवन एवं चरित्र निर्माण का विकास करने का उत्कृष्ट प्रयास साबित होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऑडियो विजुअल माध्यम बच्चों का जीवन मूल्य की शिक्षा देने का बड़ा ही सीधा व सरल तरीका है, जिसका बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या कुछ कहा है मालिनी अवस्थी से, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। को कवर करने के लिए आप आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि आज हमारे समक्ष पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी चीफ गेस्ट के रूप में इस फिल्म फेस्टिवल के लोगों को अनावरण करने के लिए आई हैं। और मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। हालांकि उनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। I feel greatly privileged to introduce a legendary Indian folk singer, Padmashri Malini Avasthi, who is here amongst us as our most honored chief guest. She is a renowned Indian folk singer whose soulful renditions have captivated audiences across the globe. Born in the culturally rich state of Uttar Pradesh, she has emerged as a prominent figure in the world of folk music, particularly celebrated for her mastery over various traditional. She is a Ganga Dam disciple of the legendary Hindustani classical singer Girja Devi Ji of Banaras. She is married to Mr. Avnish Avasthi, a senior IAS officer, currently serving as advisor to Chief Minister Uttar Pradesh. Her journey as a folk singer began at a young age, deeply rooted in her upbringing amidst the vibrant folk traditions of Uttar Pradesh. Her passion for preserving and promoting the rich heritage of Indian folk music led her to immerse herself in its diverse forms and intricacies. Over the years, she has honed her craft and emerged as a leading exponent of folk music, captivating audiences with her emotive storytelling and musical prowess. Her melodious voice and heartfelt performances have earned her widespread acclaim and accolades. Throughout her illustrious career, she has not only showcased the beauty of Indian folk music on prestigious platforms, but has also been a fervent advocate for its preservation and resurgence. Her efforts in bringing folk music to mainstream consciousness have been instrumental in revitalizing interest in these age-old music traditions. In recognition of her invaluable contributions to the field of folk music, she was honored with the Padma Shri, one of India's highest civilian awards, which reflects her stature as a cultural icon and her significant impact on the musical landscape of the nation. With her timeless melodies and unwavering dedication to her craft, she continues to enchant audiences and leave an indelible mark on the world of music. I congratulate her on her manifold achievements and invite her for unveiling of the ICFF 2024 logo on the stage and to address this august gathering and thereafter proceed for the press conference. So, can we do this, Mr. Singh? Can we first take man for the inauguration of the logo and then we'll come back and after that address? बनाने के लिए और उसमें चांद लगाने के लिए सिनेमा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और बच्चों को अच्छा सिनेमा देखने को मिले, जिससे उनके मनोबल बढ़े, जिससे उनके मनोवृत्तियाँ अच्छी बने, जिससे वो उनके विचार अच्छे बने। ऐसा सिनेमा दिखाने के लिए ये फिल्म फेस्टिवल
दुनिया भर के कई देशों से फिल्म्स को एकत्रित करता है और उनको बच्चों को, लखनऊ के बच्चों को दिखाता है। मैं इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगी कि इस साल के 13वें CMS चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में 1594 फिल्म्स जो है सबमिशंस हुए हैं 91 देशों से, 91 कंट्री से 1594 फिल्म्स यहाँ पर रिसीव हुई। उनमें से फिल्म्स सेलेक्टेड फॉर स्क्रीनिंग 501 फिल्म्स को स्क्रीन किया जाएगा और फिल्म्स फॉर कंपटीशन में जो है वो 98 फिल्म्स हैं। इसमें 6 अवार्ड दिए जाएंगे जिनकी टोटल प्राइज मनी है 10 लाख रुपए का, जो स्कूल देगा। बेस्ट फीचर फिक्शन के लिए एक डायरेक्टर जो उस फिल्म के होंगे उनको गोल्डन ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज ऑफ 1.25 लाख रुपए मिलेगा। और जो फिल्म का वो प्रोड्यूसर होगा उस फिल्म का, जिसको बेस्ट फीचर फिक्शन का प्राइज मिलेगा, उसके प्रोड्यूसर को एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज ऑफ 1.25 लाख रुपए मिलेगा। बेस्ट फीचर एनिमेशन के लिए डायरेक्टर गेट्स अ गोल्डन ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज ऑफ 1.25 लाख रुपए एंड प्रोड्यूसर विल गेट अ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज ऑफ 1.25 लाख रुपए। बेस्ट शॉर्ट एनिमेशन के लिए डायरेक्टर गेट्स अ सिल्वर ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 85,000 रुपीज़ और प्रोड्यूसर को सर्टिफिकेट और कैश प्राइज 65,000 रुपये का मिलेगा। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म के लिए डायरेक्टर को सिल्वर ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज 85,000 रुपये का और प्रोड्यूसर को सर्टिफिकेट कैश प्राइज ऑफ 65,000 रुपये का। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए भी सिमिलर प्राइजेस हैं, 60,000 के नहीं हैं। दर्शन सफारी का कंफर्म है, वो आ रहे हैं हम। देव जोशी आ रहे हैं, तलत अजीज़, सादिया सिद्दीकी, भूमिका गुरुंग, जयंत किलाकर एंड पार्थ सारथी सेठ शर्मा जो स्क्रीन प्लेज राइटर हैं। तो इनमें से भूमिका गुरुंग एक्टर हैं, सादिया सिद्दीकी, देव जोशी और दर्शन सफारी एक्टर्स हैं, तलत अजीज़ सिंगर हैं और जयंत किलाकर डायरेक्टर हैं। और जो 91 देश हैं जिनसे फिल्म आ रही हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। आपको सबको इसकी कॉपी मिल ही जाएगी। मैं उनके नाम नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, अगर टाइम होगा तो मिस्टर सिंह बाद में नाम पढ़ के सुनाएंगे। जी मैं अब आपको मैं मिस्टर सिंह को, पूरे CMS को इतने सुंदर विचार के लिए, इतने अच्छे एक आयोजन के लिए जो बिना किसी रुकावट के 13 सालों से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है और हर बार पिछली वर्ष से बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है हम सब यदि अपने बचपन की बात करें तो किसी और बात का फर्क पड़ा हो न पड़ा हो, लेकिन एक अच्छी फिल्म के एक अच्छे संदेश का असर साल साल भर की पढ़ाई पर भारी पड़ता है। ये हम सब के साथ हुआ है और उसका कारण है कि उस जमाने में फिल्म जाना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी होता था। माता पिता तय करते थे हमारे समय में कौन सी फिल्म हमें देखनी चाहिए, और कुछ फिल्में थी उस समय, जागते रहो, दो आंखें 12 हाथ, सत्यकाम, जो बच्चों की पिक्चरें नहीं थी, बड़ों की थी, लेकिन आदर्श वो थे जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक थे। स्कूलों का जहाँ ये एक मतलब दिया जाता है कि आपको स्कूल की पढ़ाई एक कोर्स को पढ़ा करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के योग्य बनाया जाए, वहाँ पर बच्चों के मन विचार तक पहुँचने की कोशिश के लिए CMS को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनी व्यस्तता के नाते कई बार आपके बहुत सारे आयोजनों का बुलावा आता, मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन गीता जी का जब इसके लिए मुझे बुलावा आया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि संस्कृति का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है फिल्म। इट्स अ मूविंग इमोशन जिसमें आप अभिनय, संवाद, संगीत, उन सब के बहाने एक कहानी सुनते हैं। और जब मैंने पूरे जो इनके ब्रोशर्स वगैरह भी देखे और पहले के भी जो इनके उत्सव होते रहे, क्योंकि कभी कभी इनके जो चीफ गेस्ट आए हैं वो हमें किसी न किसी कार्यक्रम में मिले हैं, मुलाकात होती रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिक्चरों को बुलाना, ऐसे चरित्रों की फिल्म बनाना, जैसे शायद पिछली बार आपने अहिल्याबाई पर फिल्म की मैं देख रही थी, ये ऐसे अवसर आपको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे दौर में जब बच्चों के पास फोन है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सुविधा है, वहाँ पर विद्यालय ये समझे कि समय बदल गया है, अब हम बच्चों के लिए एक फेस्टिवल करें और उसमें आपने जिस तरह से इसको एक ऐसा उत्सव के रूप में रचा है, मैं हृदय से आपको बधाई देती हूँ। ये आपके पिताजी की, माताजी की समय से आगे की सोच है। और जैसे अभी आपने फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा
का उत्सव पूरा हमने राजरीपुरम ब्रांच में आयोजित किया था। ये मेरी अफसोस कर रही थी कि और इवेंट्स ऐसे होने चाहिए उनके लखनऊ में, ताकि लखनऊ के दर्शक श्रोता शायद उनको जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा वीएनए का इस तरह का प्रोग्राम। तो सीएमएस मुझे मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, लखनऊ में शिक्षा का पर्याय है। एक संस्थान के रूप में सब जानते हैं बच्चा बड़ा हुआ तो उसको सीएमएस भेजना है, लेकिन संस्थान की ओर से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए और क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट करें जिससे बच्चे को स्कूल जाने की उत्सुकता हो, वो शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर पिक्चरों को भी देख करके जो उसके लिए चुनी गई है खास, और विश्व भर के 15 सिनेमा उनमें से चुनकर लाई गई फिल्में, क्योंकि फिल्मों को देखकर आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ती है। आप जब देखते हैं कि इराक की फिल्म बनी है और इराक का भी बच्चा मेरे ही जैसा नायक है, उसकी भी वही दुविधा है जो मेरी ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।